within 1 hour or about. Sir, any problem, sir? Yeah, no, madam. You continue. No problem. Okay. Okay, now. So shall I continue? This is the completely session only skincare knowledge along with Atomy products, Atomy care products, introducing of everything. If you have any doubts and queries and questions, asking to him only. He's a full-fledged explained with clarity. So, okay, sir. Let's start the discussion, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you to all. Okay, sir. Okay, ma'am. Sir. So shall I continue, madam? Start, sir. Let's start. Sure, you can, sir. Yeah, ma'am. So good evening, everybody. So my name is Srikanth. So I'm a makeup artist and as well as skin expert. So I welcome each and every person. Sir, okay. So I welcome everyone, Mr. Harry sir and Veeresh sir, everyone. So I don't know the names. Okay. So today we are going to talk about the skin and skin knowledge and concerns about the concerns and product knowledge. So everyone have, if anyone have got a doubts, in middle you can stop me and you can ask me the questions, no problem, because later on you don't remember what I told. So on that time only you can stop me and you can raise your hand and you can ask the questions regarding the session and skin. Okay, so before starting a session, first I will explain about the skin. Okay, see, if you want to suggest products to the customer, you should know what is the skin type of the customer and the skin, what is the skin. If you know what is the skin, then you can definitely suggest to the customer a perfect and good product to them. So what will suit them, so you can suggest. Okay, so first you should know the skin. पहले आप स्किन के बारे में मालूम करने का है. तो स्किन में कितने लेयर्स रहेंगे? तो जनरली वी हैव एपिडर्मिस एंड डर्मिस. अपने स्किन में एपिडर्मिस रहता है और डर्मिस रहता है. सो एपिडर्मिस में स्किन का लेयर्स रहते हैं. ओके, एपिडर्मिस में वी हैव 5 स्किन लेयर्स. ओके, so that called and in dermis we have cells. Okay, so in cells we have keratinocyte and a melanocyte and a fibroblast. So these all are cells which is in dermis. Okay, in epidermis we have a layers that called granule layer and spanule layer, basal layer and a horny layer. These are the layers. So whatever products we are using, so that should penetrate into the dermis. So that products will work from the internal, then you'll get nice results. जो भी अपन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो अगर डर्मिस से काम करते हैं तो जब वो रिजल्ट परफेक्टली और रिपीटेड कंसर्न्स नहीं आएंगे. जो भी आप इसके लिए अपन क्या करना चाहिए बोले तो फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन रेजिम. रेजिम इन द सेंस जनरली अपन स्किन अच्छा रखने के लिए अपन रेजिम यूज करते हैं. रेजिम इज नथिंग बट CTM, दैट इज कॉल्ड CTM. CTM इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो ये प्रोडक्ट्स जो है डेली केयर रेजिम है. अपन जनरली अपना स्किन हेल्दी रखने के लिए, कुछ कंसर्न्स नहीं आने के लिए अपन स्किन केयर रेजिम यूज करते हैं. सो स्किन केयर रेजिम इज अ रेगुलर फूड फॉर द स्किन टू मेंटेन योर स्किन. सो अभी जो भी अपन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एटोमी में, वी हैव ए मॉइस्चराइजर्स, वी हैव फेस वॉशेस and we have creams, we have gels, and we have peel off mask, and we have ampules. So many products we have. So अभी कस्टमर को आप कैसे सजेस्ट करते बोले तो फर्स्ट यू शुड एनालाइज द स्किन. अभी कस्टमर को अगर आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाह रहे, so many people have got a doubt which product we need to suggest to them. ठीक है, so उन लोगों को पहले आप क्या करना बोले तो you should analyze the skin. Analyze the skin and you should ask the questions to the customer so that you will came to know that what are the. अभी आपको मालूम
उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनको क्या प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करना है। अच्छा, आपका आवाज नहीं आ रहा है श्रीकांत सर, प्लीज चेक इट। श्रीकांत सर, आपका माइक म्यूट हो गया, यू हैव टू अनम्यूट इट। सर आ रहा सर अभी? हाँ अभी आ रहा है, या आ रहा सर? या इट इज गुड नाउ, यू कैन गो अहेड। या सर, सर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए मेरे को। जरूर जरूर, थैंक यू। ओके सर। सो फर्स्ट वी शुड एनालाइज द स्किन। सो कस्टमर को पूछना चाहिए वो लोग का वर्क क्या है, व्हाट दे डू, दे प्रोफेशन, लाइक वो लोग क्या काम करते हैं, सिस्टम के पास ज्यादा बैठते हैं या सन में ज्यादा घूमते हैं, क्या उनका वर्क क्या है। तो यू शुड फर्स्ट एनालाइज, एनालाइजिंग इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड आस्क टू द कस्टमर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कस्टमर को क्वेश्चंस पूछे तो ही आपको एग्जैक्टली वो लोग को क्या सजेस्ट करना वो आपको समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्ट यू शुड एनालाइज द स्किन, देन यू आस्क द क्वेश्चंस। सो एक्चुअली क्या होता है स्किन में, स्किन में थोड़े प्रोडक्ट्स है, दैट इज ए क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, टोनिंग एंड अ सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। ये पूरे डेली का रेज्यूम है विच वी नीड टू फॉलो। अगर आप अपना स्किन अच्छा रखना चाह रहे तो देन वी नीड टू फॉलो दिस ऑल थिंग्स। ओके, so first I want to explain you about the skin types. एक्चुअली स्किन टाइप्स कितने होते हैं स्किन में वो आपको मैं बोलूंगा, बाद में कंसर्न्स के बारे में बोलूंगा। ओके, देन वी हैव स्किन टाइप्स, इट्स one is oily and a dry and a normal and a combination and a sensitive skin. So these are the 4 skin types we have. So according to skin type we need to select a product, according to skin type we need to suggest a product to the customers. So if they have oily skin, see mostly people oily skin you will find in 19 to 25 age between. Okay, so for if they've got an oily skin, then mostly you will find a concerns, pimples, acne, scars, excess oil and a clogged pores. So generally क्या होता है oily skin का लोगों, oily skin में आपको pimples ज्यादा दिखेंगे और acne दिखेंगे, scars दिखेंगे, excess oil दिखेगा, clogged pores दिखेगा। So oily skin वाले को maximum ये concerns आपको वो लोग में दिखेंगे। अभी पिंपल्स बोले तो आपको आइडिया है मे बी है, सो मैं बोलूंगा आपको पिंपल्स के बारे में। जो भी आपको रेड कलर में दिखते हैं फेस में, जो भी आपको रेड कलर में दिखते हैं, सो इट्स कॉल्ड अ पिंपल। ओके, देन पिंपल विल टर्न इनटू एक्ने। पिंपल क्या होता है जब वो बढ़ जाएगा तो इट्स कॉल्ड एक्ने। एक्ने में आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन रहता है, इट्स कॉल्ड क्लॉग्ड पोर। ठीक है, जब भी आपको पिंपल में इन्फेक्शन दिखेगा, वो इन्फेक्शन पिंपल बंद करके रखेगा, इट्स कॉल्ड क्लॉग्ड पोर्स। उसको क्लॉग्ड पोर कहते हैं। सो आफ्टर रिमूविंग द इन्फेक्शन इट विल बिकम ए ओपन पोर। जब अपन निकाल देंगे, इन्फेक्शन निकाल देंगे पोर में से, सो कहे जाएगा ओपन पोर। Okay, because we are removing it but we are not minimizing it. So to minimize it we need to use a toner or else other products to minimize. Okay, so excess oil. So actually excess oil को अपन सीबम भी कहते हैं ऑयली स्किन लोगों को। जिन लोगों को एक्सेस ऑयल रहेगा स्किन में, वो लोग जल्दी एक्सटर्नल हैजार्ड से अट्रैक्ट होंगे। एक्सटर्नल हैजार्ड्स मींस योर पोल्यूशन, डर्ट, पोल्यूशन, सन, यूवीए, यूवीबी। तो ये
एक्सेस ऑयल रहने से जल्दी स्किन को डैमेज करता है। तो फर्स्ट वी शुड फॉर ऑयली स्किन वी नीड टू मेंटेन अ पीएच बैलेंस। तो जो भी ऑयली स्किन रहेगा वो लोगों के स्किन में अपन पीएच बैलेंस मेंटेन करना है। उनका ऑयल ज्यादा रहने से और वाटर कम रहने से दे विल गेट दिस काइंड ऑफ कंसर्न्स। सो वो लोगों को क्या करना बोले तो वी शुड सजेस्ट देम a very light gel kind of products to them। जो वो लोगों को क्रीम का सजेस्ट नहीं करना चाहिए, वो लोगों को जेल टाइप। एक्चुअली जेल में कैसा रहता है बोले तो जेल में आपको 70% वाटर रहता है, 30% ऑयल एंड मॉइस्चर प्रॉपर्टीज रहता है। सो वो लोगों को इस टाइप का प्रोडक्ट सजेस्ट करना। सो उनको रिच क्रीम में आपको 80% ऑयल रहता है और 30% वाटर रहता है। सो अगर वो लोगों को अपन क्रीम सजेस्ट करें तो क्या होता बोले तो उनका स्किन और ऑयली हो जाता, ब्रेकआउट्स आते, फिर पिंपल्स भी आते, फिर बाद में बोलते सर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सो प्लीज डोंट सजेस्ट रिच प्रोडक्ट्स टू द ऑयली स्किन। जो भी ऑयली स्किन का कंसर्न्स रहेगा वो लोगों को आप टेक्सचर देके तो मालूम पड़ेगा ये ऑयली है या नॉर्मल है या जेल है, ये आपको मालूम पड़ेगा। सो यू फर्स्ट यू टच एंड फील द टेक्सचर, देन यू सजेस्ट टू द कस्टमर्स। जो भी ऑयली स्किन रहेगा वो लोगों को क्रीम सजेस्ट नहीं करना चाहिए, वो लोगों को सजेस्ट करना है इधर लोशन इधर जेल। आपको लोशन भी मिलेगा, दोज पीपल आर कॉम्बिनेशन स्किन, वो लोगों के लिए अपन जनरली लोशन यूज करते हैं, तो वो लोगों को आप लोशन सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम सर। वीरेश सर यू कैन अनम्यूट speakers so that they can ask me the questions. So and we have a black heads and a white heads also. Generally nose के ऊपर, cheeks के ऊपर अपन को black heads दिखते हैं, chin के ऊपर। So if you are not exfoliating, अगर आप exfoliation नहीं करे तो वो अपना स्किन पे वाइसेस रहता है, that will turn into blackheads। वो काला काला हो जाता है, so that will turn into blackheads। So you should exfoliate your skin। आपका स्किन आप एक्सफोलिएट करना चाहिए। so उस एक्सफोलिएट करने से आपको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स चले जाके आपका स्किन फ्लॉलेस दिखेंगे। so ये ऑयली स्किन के बारे में है। so let me talk about a dry skin। so आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज स्किन। में आपको बोला था मैं कैसा आपको एनालाइज करते हैं स्किन। सो अगर आपको ऑयली स्किन मालूम करने का है या ड्राई स्किन मालूम करने का है, नॉर्मल स्किन मालूम करने का है, कॉम्बिनेशन स्किन मालूम करने का है, सेंसिटिव स्किन मालूम करने का, तो कैसा मालूम करना। सी देखिए, अगर सी इफ यू फाइंड द ऑयल इन टी जोन, अगर आपको टी जोन फेस में टी जोन, फोरहेड और नोज को टी जोन बोलते हैं अपन। सो जनरली क्या होता है, अगर आपको ऑयल दिखे तो मोस्टली आपको नोज के ऊपर और फोरहेड के ऊपर आपको दिखेगा, एंड द चीक्स विल बी नॉर्मल। अगर आपको फोरहेड और नोज ऑयली दिखता है, देन चीक्स थोड़ा नॉर्मल दिखता है, सो इट्स कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन स्किन। सो इट्स कॉल्ड अ ऑयली टू नॉर्मल स्किन। ओके, ऑयली टू नॉर्मल स्किन। अगर आपको टी जोन नॉर्मल दिखता है तो ऑलमोस्ट ऑल चीक्स थोड़े ड्राई रहते हैं, बिकॉज वो लोग में थोड़ा ऑयल कंटेंट कम रहता है, मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है। सो अगर आपको टी जोन नॉर्मल दिख रहा है तो उनका चीक्स थोड़ा ड्राई दिखेंगे। सो इट्स कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल टू ड्राई। ठीक है, देन कमिंग टू द ड्राई स्किन, जनरली मोस्टली अपने को एल्डर पीपल में दिखता है। दोज पीपल आर क्रॉसिंग द 35 एज, इन देम यू विल फाइंड द ड्राई स्किन। फॉर ड्राई स्किन, सो फॉर ड्राई स्किन के लिए उनको क्या सजेस्ट करने का है। ड्राई स्किन के लिए वी हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स इन एटोमी, दैट इज कॉल्ड फेम किट है। फेम किट इज मोर इट मोर इनटू न्यूट्रिशन काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें आपको ऑयल कंटेंट ज्यादा रहेगा लाइक क्रीम में। सो उस टाइप का क्रीम्स यू कैन सजेस्ट टू द ड्राई स्किन। दोज पीपल आर कंसर्न विद ड्राइनेस एंड फाइन लाइन्स, wrinkle, sagginess। सो जनरली अपने को इफ यू फाइंड अ ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन है तो ही जनरली यू विल गेट अ एजिंग साइंस। जिनको भी ड्राई स्किन रहेगा वो लोग में आपको एजिंग साइंस दिखेंगे। तो आप कैसा मालूम करेंगे तो एजिंग साइंस बोले तो फर्स्ट यू विल फाइंड अ फाइन लाइंस। आपको फाइन लाइंस दिखेंगे। फाइन लाइंस किधर दिखेंगे बोले तो आई के बाजू
you will find a fine lines, and under around the lip you will find the fine lines. छोटे छोटे फाइन लाइन्स इन द सेंस आपको बारीक बारीक जैसा लाइंस दिखेंगे, इट्स कॉल्ड अ फाइन लाइंस. अगर वो फाइन लाइंस दिख रहे तो देन यू पीपल केम टू नो दैट दे आर गेटिंग अ एजिंग साइंस. आपने को मालूम पड़ता कि हाँ ये लोगों की एजिंग साइंस स्टार्ट हुआ. फाइन लाइंस के बाद आपको व्रिंकल्स दिखेगा. व्रिंकल्स आपको व्रिंकल्स दिखेगा. वो ड्राइनेस के बारे में व्रिंकल्स दिखेगा. सो व्रिंकल्स बोल तो में क्या बोलते सो ओके. सो ड्राई स्किन ड्राई होके आपको तेलुगु में मुड़तल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कि मेरे को नहीं मालूम. सो इट्स कॉल्ड व्रिंकल्स. सो व्रिंकल्स दिखेंगे. देन सैगिनेस, सैगिंग दिखेगा. सो सैगिंग इज नथिंग बट आपका स्किन सैग हो जाता है. सो दोस पीपल आर क्रॉसिंग 50 एज, उसमें वो लोगों में आपको सैगिंग दिखता है. तो वो लोगों में सैगिंग दिखे तो सैगिंग इज अ लास्ट एजिंग साइन. सैगिंग जिसमें दिखता है वो लास्ट एजिंग साइन है. एजिंग साइंस में लास्ट एजिंग साइन है सैगिंग. तो समझना कि ये लोगों का स्किन बहुत सैग हो गया. सो वो लोग टोटली मॉइस्चर लूज हो गया, उनका स्किन मॉइस्चराइजर नहीं है, इसलिए उनका जो डर्मिस में जो भी एंजाइम जो सेल्स है वो पूरे डैमेज हो गए. लाइक डर्मिस में फाइब्रोब्लास्ट बोल के सेल रहेगा. सो अगर वो फाइब्रोब्लास्ट सेल हेल्दी है तो आपको आपका स्किन बॉन्स दिखेगा, अच्छा दिखेगा. अगर वो फाइब्रोब्लास्ट खराब हो रहा तो आपको एजिंग साइंस दिखेंगे. ओके. एंड लेट्स मी टॉक अबाउट अ नॉर्मल स्किन. नॉर्मल स्किन है, जनरली नॉर्मल स्किन में आपको नॉर्मल स्किन है तो कंसर्न्स नहीं रहते बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है. So even normal skin also they'll also get a concerns. So for them, see, अगर वो लोगों को कुछ भी concern नहीं है तो still they need to use a skincare regime to maintain their skin. अगर वो लोगों को कुछ भी concern नहीं है तो भी general regime like cleansing, toning and moisturizing they need to use. क्यों बोले तो अगर इट्स लाइक ए फूड जैसा रहता है स्किन में, इन फ्यूचर में कंसर्स नहीं आना बोले तो दे नीड टू यूज अ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड अ मॉइस्चराइजिंग. सो वी हैव ए कॉम्बिनेशन स्किन. देन कॉम्बिनेशन के स्किन के बारे में अभी बोला मैं आपको. सो कॉम्बिनेशन दोस पीपल आर दीज आर द स्किन टाइप्स नॉट कंसर्न्स. ठीक है, ये खाली स्किन टाइप के बारे में बोल रहा हूँ आपको मैं. खाली स्किन टाइप्स वालों को जज करना चाहिए, कंसर्न्स आपको बाद में जज करना चाहिए. तो स्किन टाइप्स अभी आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा. कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी दे विल आल्सो गेट ए कंसर्न्स, बट आपको कॉम्बिनेशन स्किन लोगों को मॉइस्चराइजिंग लोशन सजेस्ट करना है. व्हाई? बिकॉज मॉइस्चराइजिंग लोशन इज कंटेन्ड विद 50% ऑयल एंड 50% वाटर. सो टोटली वो बैलेंस रहेगा. तो जो लोगों का भी कॉम्बिनेशन स्किन है वो लोगों को अपन मॉइस्चराइजिंग लोशन सजेस्ट करना चाहिए. देन कमिंग टू द सेंसिटिव स्किन, जो लोगों का भी सेंसिटिव स्किन रहेगा वो लोगों को स्किन केयर कैसा सजेस्ट करना बोले तो डजन कौन सा भी स्किन में अल्कोहल कंटेंट नहीं है. इन द सेंस अभी थोड़े जन में क्या होता है, टोनर में और थोड़े ब्लीचेस में इसमें थोड़े केमिकलाइज्ड प्रॉपर्टीज रहते हैं. तो वो लोगों को स्पेशली सेंसिटिव स्किन पीपल लोगों को आप कंपलसरी ये सजेस्ट नहीं करना चाहिए. विच वन? एस्ट्रिंजेंट एंड अ टोनर एंड अ ब्लीचिंग. ये तीनों भी वो लोगों को सजेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी सेंसिटिव स्किन. इफ यू सजेस्ट दिस थिंग डेफिनेटली दे विल गेट अ रैशेस एंड इचिंग. सो दिस काइंड ऑफ कंसर्न्स यू विल गेट. ठीक है. सो सेंसिटिव स्किन के बारे में बोले सो लेट मी टॉक अबाउट द कंसर्न्स फर्स्ट. ओके, अभी आपको मैं कंसर्न्स के बारे में बोलूंगा. कंसर्न्स क्या क्या रहते हैं. एंड सी एक्चुअली वी विल डिवाइड ए रेंजेस अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न. सो हम क्या करते हैं बोले तो जनरली रेंजेस को डिवाइड करते हैं. रेंजेस इन द सेंस अभी समझिए ऑयली स्किन को एक रेंज है, और ब्राइटनिंग के लिए एक रेंज है, एंटी एजिंग के लिए एक रेंज है. ओके, और जो भी कंसर्न्स किसी को भी कंसर्न्स नहीं है, इवन दे हैव गॉट अ वन रेंज. Okay, so we have got 4 ranges. So according to concern, according to skin type, we will suggest the products. जब भी आपको कंफ्यूजन आएगा कस्टमर को क्या सजेस्ट करना, then you need to see
स्किन टाइप एंड अ कंसर्न। पहले आपको स्किन टाइप देखने का है, देन उसके बाद कंसर्न देखने का है। स्किन टाइप देखे तो आपको कौन सा टाइप ऑफ लोशन सजेस्ट करना या क्रीम सजेस्ट करना, जेल सजेस्ट करना आपको समझ में आएगा। कंसर्न देखे तो कौन सा रेंज सजेस्ट करना आपको समझ में आएगा। रेंज इन द सेंस, अब उनका ड्राई स्किन है तो यू कैन सजेस्ट न्यूट्रिशन रेंज। अगर वो लोगों का कॉम्बिनेशन स्किन है और कंसर्न है, ब्राइटनिंग कंसर्न है, सो वो लोगों को यू कैन सजेस्ट ब्राइटनिंग रेंज। वो लोगों को कुछ कंसेंसिस नहीं है, then you can suggest a normal range. That is, we have so many ranges in Atomy, so you can suggest those ranges. Okay, so then let me speak about concerns. So generally अपने को concerns क्या दिखते हैं बोले तो in brightening range, I'm talking about a brightening range. One second. Oh, yeah. Can you hear, sir? Vintasna? Yeah, we could hear. Yeah. Go Okay. ahead. Yes. So abhi I'm talking about the concerns. So generally in brightening range, like जो भी brightening range में अपन product suggest करना चाह रहे, तो in brightening range generally we will find a जिसको अपन suggest करना चाह रहे concerns के बारे में. So आपको concerns बोलूंगा. Those people are concerned with the dark spots. For them we can suggest a brightening range. Those people are concerned with the dullness. We can suggest a brightening. Those people are concerned with the pigmentation. वो भी उनको लोगों को भी आप ब्राइटनिंग रेंज सजेस्ट कर सकते हैं. देन हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा एंड अनइवन स्किन टोन. सो एक्चुअली ये ब्राइटनिंग रेंज का कंसर्न है. डार्क स्पॉट्स अभी देखिए जनरली अपने को डार्क स्पॉट्स डर्मिस से आते हैं. लाइक अभी जिन लोगों को डार्क स्पॉट्स है वो जनरली आपको डार्क स्पॉट्स ऑफ दोस पीपल आर क्रॉसिंग 25 एंड 30, वो लोग में आपको डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, लाइक आएंगे. सो स्पॉट्स आर टू काइंड ऑफ थिंग, एजिंग स्पॉट्स एंड नॉर्मल स्पॉट्स. नॉर्मल स्पॉट्स इन द सेंस अभी जनरली एक्ने आके जाने का बाद यू विल फाइंड अ स्पॉट दैट इज कॉल्ड अ डार्क स्पॉट्स. इट्स नॉट अ स्पॉट एक्चुअली, इट्स कॉल्ड अ स्कार. जो लोगों का स्किन में एक्ने आके वो मार्क लीव करता है, इट्स कॉल्ड अ स्कार. वो लोग वो स्कार अपन निकाल दे सकते हैं, लाइक विद इन 28 days or 48 days that you can exfoliate the skin and you can remove the scar, but you cannot remove a spot. क्यों नहीं निकाल सकते बोले तो स्पॉट अपने को डर्मिस से आता है. डर्मिस में मेलानोसाइट बोल के साइट रहता है, तो मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूस करता है. तो मेलानिन प्रोड्यूस करने से यू विल गेट अ uneven skin, dullness, pigmentation, hyperpigmentation, dark spots. So ये मेलानिन प्रोड्यूस करने से आपको ये कंसर्न्स पूरे आएंगे. So इसमें डलनेस है. डलनेस इज एक्सटर्नल कंसर्न इन द सेंस वो बाहर का कंसर्न है. वो डलनेस अंदर से नहीं आएगा. जो भी दोस पीपल आर एक्सपोजिंग टू द सन में एक्सपोज कर रहे, धूप में ज्यादा घूम रहे, पोल्यूशन में घूम रहे, तो वो लोगों को जनरली अपने को डलनेस आता है, अनइवन स्किन टोन आता है. तो दीज ऑल आर एक्सटर्नल कंसर्न्स, बाहर से आता है, इंटरनल से नहीं आता है. जो इंटरनल से आता है दैट इज पिगमेंटेशन, मेलास्मा एंड अनइवन स्किन टोन, सॉरी नॉट अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स. ये पूरे जो है ना मेलानिन प्रोड्यूस करने से वो डार्क स्पॉट इंटरनल से आते हैं. सो इंटरनल से जो कंसर्न आता है वो रिपेयर करने के लिए इट विल टेक. Please unmute again. Yeah, now it is clear. आ रहा सर? हाँ आ रहा है. So maybe problem with earphones. Okay. So जो इंटरनल से कंसर्न्स आते हैं वो क्लियर करने के लिए इट विल टेक सम टाइम. क्यों बोले तो साइकिल टर्नओवर होना चाहिए. लाइक इस इंटरनल से स्किन अभी देखिए डिफरेंट एजेस में डिफरेंट साइकिल टर्नओवर्स रहेंगे. सो अभी देखिए स्मॉल एज है तो वो लोगों को 5 to 6 weeks लगेगा साइकिल टर्नओवर होने के लिए. अगर एज 19 to 21 है वो लोगों को 14 to 21 days लगेगा. ज्यादा एज हो गया तो 28 days में वो लोगों को साइकिल टर्नओवर होगा, स्किन साइकिल टर्नओवर. सो जो भी इंटरनल से कंसर्न्स आ रहा है इट विल टेक सम टाइम टू गेट क्यूर.
ओके सो अभी देखिए इंटरनल से कंसर्न आ रहा है, देन फर्स्ट यू विल फाइंड, अभी पिगमेंट सब जने बोलते हैं सर मेरे को ब्लैक थोड़े थोड़े पैचेस आ रहा, फेस के ऊपर ब्राउन ब्राउन पैचेस आ रहा, सो वो लोगों को इट्स कॉल्ड पिगमेंटेशन। पहले वो इट्स लाइक ए ब्लेमिश काइंड ऑफ थिंग, वो पहले ब्लेमिश जैसा रहेगा, ब्लेमिश विल टर्न इनटू पिगमेंटेशन। वो ब्लेमिश का आएगा अगर आप टेक केयर नहीं करें, बोल के टेक केयर नहीं करें, तो दैट विल टर्न इनटू पिगमेंटेशन, देन पिगमेंटेशन विल टर्न इनटू हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंटेशन आपको डार्क ब्राउन में रहेगा, हाइपर पिगमेंटेशन बोले तो टोटली ब्लैक एंड ब्राउन में रहेगा, सो इट्स कॉल्ड हाइपर पिगमेंटेशन। सो वो लोगों को अगर आप स्किन केयर सजेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट अ ब्राइटनिंग रेंज and a absolute range also. So these products are very good for them, but the thing is whenever you're suggesting products, you should suggest a regime. Regime is nothing but a cleansing, a toning. So अब देखिए अपने कने brightening range है, we have a ampoule as well as a cream. Okay, so ये लोगों को cleansing नहीं है, so first we should cleanse the skin. अगर आपको स्किन क्लेंस नहीं करे तो अदर क्रीम्स विल नॉट वर्क। सो वो क्यों नहीं वर्क करता मैं आपको बताऊंगा। सी जनरली रेजिम क्यों यूज करते हैं बोले तो, सी फर्स्ट क्लेंस, व्हाट क्लेंस विल डू, क्लेंस विल रिमूव योर इम्प्यूरिटीज, डर्ट, पोल्यूशन, एक्सटर्नल हैजार्ड्स। क्लेंजर क्या करता है बोले तो आपका स्किन में जो डर्ट है, पोल्यूशन है, एक्सटर्नल हैजार्ड्स है, ऑयल है, सो वो रिमूव करता है, निकाल देता है। क्लेंजर का काम वही है। क्लेंजर से आपको फेयरनेस नहीं आएगा, क्लेंजर से आप गोरे नहीं होंगे, क्लेंजर विल वर्क फॉर दैट। Yeah, still they have little brightening properties which will naturally exfoliate your skin, then you'll get a light brightening kind of thing. So the second step is a toner. So actually skincare mein second step will play the main role into the skincare, that is a toner. Toner mein aapko you will get according to skin type, that is you'll get a astringent and the toner and a softener. So in Atomy we have a toner only, but it's like a softener. अगर आप texture देखे तो which is in very soft, so आपको soft रहेगा और it's like a moisturizer kind of thing. Okay, so that quality is very good. तो अपने Atomy में main quality है इसमें toner बोले तो normal, it's not water kind of thing, it's complete moisture kind of thing which is more luxurious kind of thing. Okay, बहुत अच्छा है टोनर। सो टोनर विल प्ले द मेन रोल इनटू द स्किन। सो टोनर विल अलाउ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट टू पेनिट्रेट इनटू द स्किन। ओके, जब अभी बाद में जो कंसर्न क्रीम रहता है दैट इज एम्पूल ऑरल क्रीम, सो दैट विल पेनिट्रेट इनटू द स्किन। टोनर यूज करने से अपना जो थर्ड कंसर्न क्रीम है, कंसर्न क्रीम बोले तो चाहे वो पिगमेंटेशन क्रीम हो, चाहे वो डलनेस का क्रीम हो या ड्राइनेस का क्रीम हो, so it's called a concern cream. Concern cream is a third step. Okay, either a essence, so these all are concern creams. So concern cream will penetrate into the skin. जो ये लेयर्स कंप्लीट करके आपको डर्मिस में एंटर होगा कंसर्न क्रीम। अगर आप टोनर यूज कर रहे तो डर्मिस में एंटर होके देन आफ्टर दैट द कंसर्न क्रीम विल वर्क फॉर योर इंटरनल। ठीक है, तो आपका कंसर्न क्रीम जो है इंटरनल से काम करेगा। अब थोड़े कस्टमर्स बोलते हैं सर मैं एक क्रीम यूज करा, मेरे को चले गया फिर आया। फिर क्यों आया? बिकॉज वी आर नॉट रिपेयरिंग अ स्किन फ्रॉम द इंटरनल, जस्ट वी आर रिपेयरिंग इन एपिडर्मिस ओनली। सो दैट क्रीम वर्क फॉर योर एपिडर्मिस ओनली, दैट विल रिमूव and it will minimize your concern. After that again you will get a concern. Why? Because you are not repairing your skin from the internal. Okay, so इसीलिए आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन। अगर आपको कौन सा भी स्किन कस्टमर सजेस्ट कर रहे हैं तो वो लोगों को कंपलसरी टोनर भी सजेस्ट करना, क्लेंजिंग भी सजेस्ट करना। ओके, सो ये है, आप क्लेंजिंग टोनिंग सजेस्ट करें तो देन यू विल नॉट गेट रिपीटेड कंसर्न्स। So let's talk about hyperpigmentation. Hyperpigmentation is अगर आपको पिगमेंटेशन आया, इंटरनल से आया, अगर आप टेक केयर नहीं करें सो वो हाइपरपिगमेंटेशन जैसा बन जाता है। अगर हाइपरपिगमेंटेशन हो गया तो इट विल टेक ईयर्स, वो क्लियर करने के लिए ईयर्स लगता है। बिकॉज वो लोगों का एपिडर्मिस में जो लेयर्स रहते हैं लाइक हॉर्नी लेयर, बेसी लेयर, ग्रैन्यूल लेयर, 5 लेयर्स रहते हैं, वो टोटली डैमेज होते हैं। So first we need to exfoliate them. So वो लोगों को स्क्रब यूज करना पड़ता है। See we have got a evening care kit. So evening care kit में क्या है बोले तो it's all about a peeling.
वो काली, इट्स ऑल अबाउट अ पीलिंग, एक्सफोलिएशन पर्पस ओनली। सी अभी आपका अगर कोई आपको कस्टमर मिलेगा, पिगमेंटेशन है सर मेरे को, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, तो ये कैसा जाएगा? तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट अ इवनिंग केयर किट because it has a deep cleanser as well as a foam cleanser and a peeling gel and a peel off mask. So ये complete evening care kit work for your exfoliation only. So ये किट किसके लिए काम करता है बोले तो आपका स्किन को एक्सफोलिएशन करके इंटरनल से सेल्स जनरेट करके आपको न्यू स्किन आने के लिए काम करता है। तो अगर न्यू स्किन आ रहा तो डेफिनेटली आपका पुराना स्किन चले जाता, न्यू स्किन अंदर से आता, लेकिन यू शुड यूज ए कंसर्न क्रीम ऑल्सो। ये कंप्लीटली आपको ये काम नहीं करेगा, इंटरनल से काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए कंसर्न क्रीम, इट्स ए पीलिंग सेट, इट इज, सो इट्स ए पीलिंग सेट। सो क्यों अपन डेली यूज करो बोल रहे, इस एक्चुअली थोड़े जने बोलते 365 days we can use a evening care kit. Why? Because that is going to work for your exfoliation. बाहर जो एक्सफोलिएशन डेड सेल्स रहेंगे, वो डेड सेल्स ये इवनिंग केयर किट एक्सफोल करते रहता, अपने स्किन में से न्यू सेल्स जनरेट होते रहते, सो ऑटोमेटिकली अपना स्किन जो है ना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, बट समटाइम्स योर स्किन कैन बिकम ए ड्राई with this kit because we are not moisturizing our skin, just we are exfoliating our skin. Yeah, still they have got a little moisturizing properties, but it is not a complete moisturizing properties contained in evening care kit. You should use a moisturizer after peeling, so that is a different range and this is different range. So this is like a facials kind of thing which will naturally exfoliate your skin and it will help for the recycling. See, recycling के लिए आपको ये evening care kit काम करेगा। You definitely those people are concerned with pigmentation, dullness, uneven skin tone, dark spots, ये लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। और ये किट ऑयली स्किन को भी सजेस्ट कर सकते हैं, ड्राई स्किन को भी सजेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी जब भी आप ड्राई स्किन को सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर रहे, then you need to suggest a moisturizing cream also. जब भी आपको ड्राई स्किन को ये इवनिंग केयर किट सजेस्ट करते हैं, सो वो लोगों को आप कंपलसरी यू नीड टू सजेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑल्सो, सो वो लोगों को आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बाद में स्किन ड्राई नहीं होगा। ओके, सो श्रीकांत सर, सर एक इवनिंग केयर किट सजेस्ट करने के बाद मॉइस्चराइजिंग के लिए न्यूट्रिशन क्रीम सजेस्ट कर सकता है? या डेफिनेटली सर, अभी इवनिंग केयर किट सजेस्ट कर रहे हैं सर अपने को, अपन किसको सजेस्ट कर रहे हैं इवनिंग केयर किट? दोस पीपल आर कंसर्न विद द ब्राइटनिंग कंसर्न्स, राइट? ब्राइटनिंग बोले आप, ब्राइटनिंग बोले, और दूसरा हाइपर पिगमेंटेशन बोले, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। या सर, अभी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स, ये पूरे भी ब्राइटनिंग का कंसर्न्स है। अच्छा, ओके, ठीक है। सो अब ये आप डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये पूरे ब्राइटनिंग कंसर्न के लिए डेफिनेटली इवनिंग केयर किट काम करेगा। अभी आप देखिए वो लोगों को ब्राइटनिंग कंसर्न है तो वी हैव ए ब्राइटनिंग रेंज है ना सर अपने कने, हाँ, उसमें आपने को हाइड्रा ब्राइटनिंग है, वो सजेस्ट 7:43 PM है एज। हेलो सर, हाँ, डिस्टरबेंस हुआ, अभी साफ है। हाँ, या सो उसमें हाइड्रेटिंग ब्राइटनिंग रे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो लोगों का स्किन ड्राई है, एज पर्सन है, दोस पीपल आर क्रॉसिंग 40-45 एज, वो लोगों को कंसर्न लाइक ब्राइटनिंग कंसर्न कम है, थोड़ा लाइट कुछ थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, तो यू कैन सजेस्ट अ फेम किट। ओके, फेम किट आल्सो यू कैन सजेस्ट। फेम किट में इसमें अपने को टोटल रेंज है, क्लेंजिंग क्रीम है, टोनर है और आई क्रीम है एंड न्यूट्रिशन क्रीम है। सो टोटली वो एंटी एजिंग के लिए काम करेगा एज वेल एज एक्सफोलिएशन के लिए भी काम करेगा। एक्सफोलिएशन के लिए कैसा काम करेगा बोले तो इट हैज द टोनर,
तो टोनर भी आपको एक्सफोलिएशन के जैसा भी काम कर सकता है। सो अब जनरली टोनर कैसा यूज करते बोले तो सब जने कॉटन में लेके या कॉटन पैड में लेके यूज करते हैं। अगर आपको लोकल टोनर यूज करना है तो यू कैन यूज लाइक दैट, बट अपन का टोनर जो है विच इज वेरी प्रीशियस, बहुत अच्छा क्वालिटी है। डोंट वेस्ट अ टोनर, टेक इट इनटू द फिंगर्स, जस्ट यू टैप इट, पुट इट ऑन योर फेस, देन यू टैप इट, टैप करना चाहिए। तो टैप करे तो क्या होता, स्किन में पेनिट्रेट होता टोनर। ओके अच्छा, ये हाइपर पिगमेंटेशन पूरा जाने के लिए कुछ सालों लगता बोले आपने, कितना साल लगता है? 1 साल, 10 साल, कितना साल? नहीं सर, अभी देखिए साल इन द सेंस 10 साल नहीं लगता आपने को, सो वी कैन नॉट टेल। बोल तो वो लोगों का बहुत लाइक ब्लैक कलर हो गया तो मेन दे रिक्वायर एक्सफोलिएशन फर्स्ट। वो लोगों का एपिडर्मिस में जो लेयर्स है वी नीड टू एक्सफोलिएट देम, एपिडर्मिस में जो लेयर्स है वो एक्सफोलिएट होते, तो वी नीड टू फोकस ऑन एक्सफोलिएट एज वेल एज द मॉइस्चराइजर। सो वो लोगों को क्या मिनिमम सी प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली विद इन 6 months दे विल गेट अ रिजल्ट, राइट। तो हाइपर पिगमेंटेशन है तो नॉर्मली नॉर्मल पिगमेंटेशन है तो विद इन मंथ्स में दे विल गेट अ रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक वो लोगों को थोड़ा 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 कम हो जाएगा। बट दोज पीपल आर कंसर्न विद हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर बोले तो टोटली वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर में रहेगा, तो वो जाने के लिए इट विल टेक 1.5 year, मिनिमम 1.5 year इट विल टेक, बिकॉज वो लोग का स्किन टोटली बर्न हो जाता, जो लेयर्स हो पूरे खराब हो जाता। सो उनको एक्सफोलिएशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता। बट कस्टमर को ऐसा नहीं बोलना कि मैडम ये सालों लगेगा, अगर वो लोग यूज कर रहे क्यों बोलते वी हैव इट। सी एक्चुअली वो लोग का स्किन का वो लोगों को क्या रिक्वायरमेंट रहता बोले तो अभी हाइपर पिगमेंटेशन दे रिक्वायर केमिकल क्लीनिंग। जो ज्यादा जने क्या करते हैं बोले तो वो लोगों को स्किन टोटली हाइपर पिगमेंटेशन हो गया तो वो लोग क्या करते हैं या वीएलसीसी में थोड़ा थोड़ा जगह जाके दे विल डू द केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग इज नथिंग बट दे विल कंप्लीटली पील योर स्किन। जो आउटर लेयर्स का स्किन रहता है 21 डेज पे एक सेटिंग रहता है, सो 21 डेज में फिर बुलाएंगे, फिर पील करेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर पील करेंगे। सो वैसा वी हैव ए पीलिंग किट, बोलते उस कैटेगरी का नहीं है, लाइक सेम समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। अपन भी एवरी डे पील कर रहे हैं स्किन को विथ इवनिंग केयर किट। सो टोटली वी आर फोकसिंग ऑन पीलिंग। सो अपन ये क्लेंजिंग फोम क्या करता है, दैट विल एक्सफोलिएट स्किन इन नेचुरल बेसिस। तो डीप क्लेंजिंग क्या करता है, डीप क्लेंजिंग फोम, क्लेंजिंग फोम कैसा यूज करना बोलता है, यू टेक इट इनटू द पाम cleansing foam, then you add little water, then you lather it, then you get rich foam, so that you apply it on your face, then you massage it properly with for 5 minutes, then you rinse it off. Cleansing foam का तरीका होता है ऐसा यूज करना, डायरेक्टली डोंट अप्लाई क्रीम ऑन फेस। क्लेंजिंग फोम, मेनली क्लेंजिंग फोम थोड़े जने क्या करते हैं वो डायरेक्टली फेस के ऊपर लगा के फेस में वाटर डाल के रब करते हैं, दैट इज नॉट अ procedure to use a cleansing foam. So you take it on your palm, just you add some water, then you lather it, then you get nice rich cleansing foam, then you apply it on your face, then you massage it for the 5 minutes or 10 minutes, then you rinse it off. Okay, then the peeling gel. Peeling gel is a massaging foam. Generally peeling gel किसी कंपनी में मसाज जेल में नहीं, मसाजिंग फॉर्म में नहीं आता है, लेकिन अपने एटोमी में पीलिंग जेल मसाजिंग फॉर्म में क्यों आना बोले तो पीलिंग हैज टू पेनिट्रेट इनटू द स्किन। तो जो क्रीम है वो पेनिट्रेट हो रहा स्किन में, सो दैट इज रिमूविंग योर कंसर्न, लाइक इम्प्यूरिटीज जो है, डर्ट है या कंसर्न है, दैट इज रिमूविंग यू फ्रॉम द इंटरनल लेयर्स। सो पीलिंग जो है इंटरनल से रिमूव कर रहा है, देन अपना पील ऑफ मास्क जो है दैट इज टोटली एक्सफोलिएटिंग योर outer layer, that is it's called a desquamating cell. तो ये desquamating cells क्या होता है बोले तो ये एक्सफोलिएट होते रहते हैं, अगर अपन एक्सफोलिएट नहीं करे तो वो ऐसे रह जाता है, देन यू आर कंसर्न से ये स्ट्रैटम कॉर्निया, ग्रैन्युलेयर्स, ये पूरे भी ये अपना पील ऑफ मास्क जो है एक्सफोलिएशन करता है, देन अंदर से न्यू सेल्स आते हैं, देन अपना स्किन रिपेयर होता है, उस तरीके से अपना स्किन रिपेयर होता है। सो आवर evening care kit is going to work on your epidermis, not in dermis. Okay, so जो अपना एक्सफोलिएशन टेक्निक्स जो है, ये क्रीम्स जो है आपके एपिडर्मिस काम करते हैं, लेकिन आपका डर्मिस को अगर आप रिपेयर करना चाह रहे तो then you need to use a concern cream. Hello. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.
Yeah, sir. Doubt is clear. Doubt is clear, sir. Yes, sir. Thank you. So anti-aging के range के लिए you can suggest our Fame Kit. Fame Kit is very good for the anti-aging concerns as well as little brightening concern also. Okay. Then we have a serum also. Generally अपने करने serum है. See, serum is something like concentrated thing. Serum is something like concentrated thing which will work for your mainly concern. अगर आपका skin डैमेज है तो मॉइस्चराइजिंग एक 5 टाइम कंपेयर करें तो सीरम होता है, दैट इज दैट मच कॉन्सेंट्रेटेड. बट सीरम में भी टेक्सचर्स होते हैं, सीरम में भी जेल फॉर्म होते हैं, ऑयल फॉर्म होते हैं, वो आप देख के कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए. अगर वो लोगों का ऑयली स्किन है, यू शुड नॉट सजेस्ट ऑयली काइंड ऑफ सीरम्स, यू कैन सजेस्ट जेल काइंड ऑफ सीरम. अगर आप अपना ब्राइटनिंग रेंज देखे तो आपको वो अपना जो एम्पूल सीरम है, दैट इज नॉट, इट डजंट कंटेन अ ऑयल इन इट, इट्स इन अ जेल फॉर्म that you can suggest to the any skin type of customers. Then we have one more small question, Srikanth garu, because I'm not into cosmetics anytime. What is the difference between toner, serum, essence, cream? ये चारों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये टोनिंग का डेफिनेशन नहीं पता, सीरम का डेफिनेशन क्या कर रहा है वो नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो ऑल दिस थिंग्स. Could you please explain and it may help somebody else also? Thank you. Yeah, definitely sir. See इससे पहले मैं बोला था टोनर इज a रेज्यूम का एक वो होता है. See, everyone have got their work. एक एक क्रीम का वो लोगों का वर्क है, ठीक है. टोनर क्या करता है, दैट विल हेल्प द नेक्स्ट ट्रीटमेंट टू पेनिट्रेट इनटू द स्किन, okay, and that will help to exfoliate your skin in a natural basis. Toner and थोड़े toners कैसे होते हैं which contains a moisturizing properties in it. अगर आप moisturizer use नहीं करें तो भी that toner will work like a moisturizer also, but that is not mainly for moisturizer. It's a toner only, but few brands are contain a moisturizing properties because the toner see generally कौन सा भी नॉर्मल प्रीमियम कंपनी में देख लीजिए, आपको टोनर इन वाटर बेस में आपको दिखेगा. बट एटोमी है, थोड़े थोड़े ब्रांड्स है, सिसेडो है, अदर थोड़े लग्जरियस ब्रांड्स है, सो वो ब्रांड्स में अपने को टोनर इन रिच टेक्सचर में दिखेगा. इट्स लाइक ए वाटर ओनली बट द टेक्सचर इज वेरी रिच. सो ऐसा टेक्सचर यूज करने का, ऐसा टोनर यूज करे तो देन यू विल गेट वेरी फास्ट रिजल्ट्स and a nice result. इससे आपको कुछ skin damage नहीं होगा because it doesn't contain a chemical properties in it. Okay, so our toner is very good. The toner will play the main role into the skin. अगर ये लोग अभी देखिए जनरली क्यों सजेस्ट करते हैं, इसमें पूरा अभी अपना फेम किट है, इसमें टोनर क्यों दिया, क्रीम क्यों दिया, एसेंस क्यों दिया, आई क्रीम क्यों दिया, न्यूट्रिशन क्रीम क्यों दिया, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट रेज्यूम. कस्टमर को पूरा टोटल फेस को रिपेयर कर रहा है. अभी क्रीम है, क्रीम इज इससे क्रीम कैसा रहता बोले तो क्रीम टू मेंटेन अ पीएच बैलेंस इनटू द स्किन. क्रीम क्यों काम, मॉइस्चराइजिंग क्यों काम करता बोले तो अपना स्किन में जो पीएच बैलेंस है, लाइक पीएच बैलेंस इज नथिंग बट द वाटर एंड द मॉइस्चराइजिंग लेवल. ओके, सो ये पीएच बैलेंस स्किन में मेंटेन करने के लिए वी यूज अ मॉइस्चराइजर. Moisturizer, we have a lotion, we have a cream, and we have a gel base. So according to skin type, we need to suggest a moisturizer. अभी देखिए फ्रेम किट में थोड़ा इनको डाउट आएगा, सर वी हैव ओनली फेम किट, फेम किट में जेल बेस का मॉइस्चराइजर नहीं है. ओके, उसमें ओनली वी हैव ए क्रीम. अगर आपको कस्टमर को क्रीम है तो वो लोग किसको सजेस्ट कर रहे क्रीम, एंटी एजिंग लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं. एंड दोस पीपल आर नॉट कंसर्न विद एनी कंसर्न्स, वो लोगों को भी अपन फेम किट सजेस्ट कर रहे हैं. बट ड्राई स्किन है सो लोगों को मॉइस्चराइजिंग बेस, मॉइस्चराइजिंग क्रीम थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में ले सकते हैं. ड्राई स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है वो लोगों का, सो यू टेक अ पर्ल साइज. हाथ में आ गया, फिंगर में आ गया, 2 फिंगर से ले लिए, लगा लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नहीं. You should see the quantity also. Quantity also differs. Quantity, अगर आप quantity ज्यादा ले रहे तो then your skin will become oily.
So you should take a pearl size, you apply it on your face, okay, then you see if you require again, then you take one more, you can take one more time. So ऐसा थोड़ा थोड़ा लेके आप मॉइस्चराइजर ऐड करके यू शुड सी योर क्वांटिटी, आपको जितना रिक्वायरमेंट है देखने का बाद यू कैन टेक योर मॉइस्चराइजर एज यू रिक्वायर क्वांटिटी, ठीक है। सो ये मॉइस्चराइजर का काम है। एसेंस, एसेंस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड थिंग। एसेंस 5 टाइम्स बेटर काम करेगा और फास्ट काम करेगा, फास्ट रिजल्ट्स देगा, बिकॉज इट्स मेनली वी आर फोकसिंग ऑन कंसर्न। ये क्यों बोले तो ये मेनली अपन एसेंस क्रीम जो है कंप्लीटली कंसर्न के ऊपर काम कर रहा है। अगर देखिए आपका फेम किट है, सो फेम का एसेंस है, तो दैट इज मेनली वर्क योर ड्राइनेस। वो क्या काम कर रहा है, स्किन में जाके आपका मेनली ड्राइनेस के लिए आपका डर्मिस में है सो केराटिनोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट को रिपेयर कर रहा है और आपका पीएच बैलेंस इंक्रीज कर रहा है और स्किन को हाइड्रेट कर रहा है। Okay, so moisturizing cream will hydrate your skin as well as it will maintain your pH balance. Moisturizer का काम है to maintain your pH balance according to skin type only. You need to suggest, अगर आपका cream है तो you need to dilute into the water and make it a moisturizing lotion, then you apply it on your face. If you don't have a cream, if you have a lotion, then directly you can use it for the combination skin. Then if you have an oily skin, then don't use a rich texture creams. That is the nutrition cream is very rich texture. अगर वो touch करे तो आप देखे तो you'll find a little oil kind of thing. So for oily skin, don't suggest rich creams. You can brightening range you can suggest, because उसमें जो ampule says completely in a light base, completely in a water base, you can suggest that. And उनका cream है, I agree that little थोड़ा rich base है वो भी, but you can dilute and you can take a quantity, जितना requirement है उतना quantity लेके, थोड़ा quantity लेके you can use it for the combination skin as well as a oily skin, because the quantity what you're taking, which is very little, so you're not taking much quantity to damage your skin. So quantity also differs, वो भी देख लेना चाहिए। कस्टमर को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो क्लियरली समझाना चाहिए। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ cleansing, toning and the moisturizing as well as the essence. And let me talk about a sunscreen also. So we have a sunscreen which is very good. It is in a lotion form, suitable for the all skin types. See, sunscreen क्या करता है, sunscreen का job क्या है? Sunscreen will work for your sun protection. sun के बाद sun से जो concerns आते हैं उसके लिए अपना sunscreen काम करता है. So sunscreen will work like a layer on your face. It doesn't allow any external hazards to damage your skin. That is your pollution, your dust, a UVA and a UVB. So UVA is nothing but ultraviolet aging. UVB is nothing but ultraviolet burning. And UVR also there. UVR is ultraviolet rays. So ultraviolet rays किधर से आता है बोले तो sun से आता है. Then if आप सिस्टम के सामने बैठे तो आपको ultraviolet rays आता है. मोबाइल के सामने बैठे तो ultraviolet rays आता है. स्टोव के सामने बैठे तो ultraviolet rays आता है. So that will damage your skin. So वो क्या करता है, आपका स्किन को डैमेज, डलनेस आने के लिए या पिगमेंटेशन आने के लिए और डार्क स्पॉट्स आने के लिए, सो ये पूरे आने के लिए भी ये पूरे कंसर्न्स है. सो जब भी आप कंसर्न क्रीम रिकमेंड कर रहे तो यू शुड रिकमेंड सनस्क्रीन. क्यों बोले तो इंटरनल से रिपेंड कर रहे हैं अपन, बट एक्सटर्नल से क्या कि स्टॉप कैसा कर रहे हैं, अपने एक्सटर्नल से स्टॉप नहीं कर रहे. फिर सन लगेगा, वो लोग धूप में बाइक के ऊपर जाएंगे, स्टोव के ऊपर खड़े, स्टोव के पास में खड़े रहेंगे, सिस्टम के सामने खड़े रहेंगे, सर मेरा कंसर्न नहीं जा रहा, वो तो नहीं जाता. बिकॉज एक्सटर्नल ऑल्सो यू शुड टेक अ सपोर्ट. तो बोलते हो एक सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. सनस्क्रीन वर्क लाइक ए लेयर. तो अभी ये क्रीम्स अंदर से काम करेगा और सनस्क्रीन बाहर से काम. ओके, सो सन बर्न, यूवीबी. सन बर्न बोले तो जो आपका आवाज फिर बंद हो गया श्रीकांत सर. प्लीज चेक द माइक.
Sir, Yeah, now it is clear. actually I've got a call, sir, so that's why I get a disturbance. Okay. ओके सो दो जो भी लोग बीच में जाते हैं वो लोगों को स्किन बर्न आता है। क्यों बोले तो वो लोग वाटर में सोडियम कंटेंट रहता है, तो सोडियम इज नथिंग बट सॉल्ट। वो सॉल्ट क्या करता है, स्किन को टोटली डार्क कर देता है। सो इट्स कॉल्ड ए सन बर्न। ज्यादा देर बीचों में समुद्र में स्नान करते हैं या ज्यादा स्विमिंग पूल में रहते हैं तो they'll get a skin burn. For them also we can suggest a brightening base। जो लोगों को स्विमिंग पूल में जाने से पहले एटोमिका सनस्क्रीन यूज करो बोल के बोलना चाहिए। सो ये स्किन सनस्क्रीन के बारे में। सो नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इफ यू गॉट एनी डाउट। Hello. या सर। Am I? Yeah, sir, tell me, sir. I can hear you. Volume कम। Hello. Yeah, sir. Hello. Yeah, hello, sir. Can you hear me? Hello, आप सुन सकते हैं? Yeah, I can hear you. Yeah, sir. हाँ सर, मैं audible हूँ सर। Okay, sir, what should not be not to be given to a sensitive skin? See, sir, if you have got a sensitive skin, see, sensitive people mostly you will not get a concern. Okay, जो sensitive skin रहता है वो लोगों को like aging signs कम दिखते हैं और brightening age का concerns भी आपको कम दिखते हैं। To maintain the skin, you can suggest अपना Fame Kit. Fame Kit is very good for the sensitive skin because it has all good creams। like आप देखिए अपना cleansing foam है, it doesn't contain any harsh kind of chemicals in it। तो आपका cleansing film बहुत अच्छा है, वो suggest कर सकते हैं। and it has a moisturizer, वो भी toner है, toner is which is in a moisturizer, contains the moisturizing properties in it। so वो भी it doesn't contain alcohol in it। like अपना toner में जो है alcohol नहीं है। जनरली सेंसिटिव स्किन को अल्कोहल लगाए तो उनको क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, बर्निंग सेंसेशन आएगा। तो अपना टोनर है ना बहुत लाइट टेक्सचर में है, मॉइस्चर टेक्सचर में है, वो टोनर सजेस्ट कर सकते हैं। एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम है विच विल वो लोगों का सेंसिटिविटी कम करने के लिए अपना एसेंस काम करेगा एज वेल एज अपना क्रीम भी काम करेगा। क्यों बोले तो इट्स मेनली रिटर्न हियर, इट इज रीजेनरेटिंग एज वेल एज न्यूट्रिशन। सो अपना स्किन में जो कंसर्न्स है वो क्लियर करेगा एज वेल एज हाइड्रेट करेगा। तो सेंसिटिव स्किन लोगों को मोस्टली आपको क्या दिखता बोले तो ड्राइनेस, लोगों का स्किन में ड्राइनेस ज्यादा दिखेगा। सो ड्राइनेस के लिए अपना फेम किट इज वेरी गुड फॉर देमसेल्फ। हेलो। Okay, thank you sir. Yeah. Any other question? हेलो। Anybody can ask, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटा बड़ा या रिपीटेड सिली एनीथिंग। Sir, yeah, questions sir बहुत है लेकिन it's just all jumbled in the mind now. Okay, टेक योर टाइम, और एक बार सेशन ले लेंगे क्योंकि अभी Okay इनके sir, लिए sir Viris, I really say that thank you so much for bringing Sir Srikanth today in the session। बहुत like it's a very what to say $1 million knowledge हम लोगों के लिए, और हम लोग स्किन पे ही काम कर रहे हैं, तो आज का सेशन जो है इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। एंड आई रिक्वेस्ट वन थिंग फॉर नेक्स्ट सेशन, if sir Srikanth can share some PPT along with the PPT, so I think we will understand very deeply. surely we will try, sir, we will try. Yeah, and remaining to thank you to Sir Viris and thank you Sir Harry, and thank you to Sir Srikanth also for giving us time in your busy schedule also. So thank you so much, sir. Okay, sir. Thank you, Srikanth garu. Yeah, sir. Any more questions? Any more questions, small or big? Anything you can ask, sir. No problem. Any questions you can ask. You can ask about anything. See, आपको मैं clearly आपको सब्जियों को समझा दिया।
एक्चुअली क्या होता है स्किन में, लाइक अपनी कंसर्न क्या होते हैं, स्किन टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, कस्टमर को कैसा सजेस्ट करना, तो ये पूरे आपको मैं समझा सका हूँ। तो आप कस्टमर को पहले एनालाइज करना चाहिए, कस्टमर को पूछना चाहिए उनका जॉब क्या है, उनका स्किन टाइप क्या है, उनका कंसर्न क्या है, ठीक है। देन यू कैन सजेस्ट करेक्ट प्रोडक्ट, कस्टमर को करेक्ट प्रोडक्ट अपने को सजेस्ट करना है। ब्लाइंडली सी ब्लाइंडली आपके अगर ब्राइटनिंग रेंज है तो वो लोगों को पिगमेंटेशन है तो ब्राइटनिंग में सजेस्ट कर दे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो फर्स्ट सी वी हैव इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आल्सो, आप देख सकते हैं अपने कने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी है, लाइक इंडिविजुअल एम्प्यूल है, इंडिविजुअल टोनर है, इंडिविजुअल न्यूट्रिशन क्रीम है, इंडिविजुअल सीरम है, इंडिविजुअल टोनर लाइक लोशन भी है। सो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप यू सजेस्ट द क्रीम, कॉम्बिनेशन स्किन है तो लोशन सजेस्ट करो, ड्राई स्किन है तो न्यूट्रिशन क्रीम सजेस्ट करो। अगर वो लोगों को डार्क सर्किल है या फाइन लाइन है और स्ट्रेस के वजह से वो लोगों को आई का कंसर्न सारा, तो यू कैन सजेस्ट आई कॉम्प्लेक्स, आई का क्रीम है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। दो पीपल आर एफोर्डेबल, अगर वो लोग एफोर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट एब्सोल्यूट सेलेक्टिव थिंग। सेलेक्टिव इज नथिंग बट वो क्या करता है, सेलेक्टिव बोले तो अपना स्किन में जाके अपना सेल्फ को एक्टिव कर रहा है। लाइक अभी आपका एजिंग है, लाइक दोस पीपल क्रॉसिंग द 50 आल्सो, दोस पीपल क्रॉसिंग द 45, सो वो लोगों को क्या करता है स्किन में जाके वो लोगों का ब्राइटनिंग के लिए भी काम करता है और सेल एक्टिवेशन के लिए भी काम करता है। डेफिनेटली वो लोगों का स्किन क्या होता है, बॉन्सी, इलास्टिसिटी, ये पूरे इंक्रीज हो जाके वो लोगों का स्किन अच्छा होके जनरली बोलते हैं एब्सोल्यूट स्किन केयर से 10 ईयर पीछे लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, तो ऐसा ही लेके जाएगा। सो दैट विल एक्टिवेट योर स्किन, सो दैट विल एक्टिवेट योर सेल्स, जो अपने स्किन में जो फाइब्रोब्लास्ट से पूरे होते हैं वो सेल्स एक्टिवेट करके आपका स्किन 10 ईयर्स बैक लेके जाता है। ऑटोमेटिकली आपका स्किन यंग दिखेगा, तो आपका स्किन ब्राइट, यंग और बाउंसिंग, इलास्टिसिटी पूरे भी इंक्रीज हो जाएंगे। सी द एब्सोल्यूट किट जो है ना, दैट इज मोर इनटू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, उसमें जो इंग्रेडिएंट है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज मोर इनटू एडवांस्ड है। उसमें देखिए यू हैव 6 पीसेस, so total 6 pieces is going to work for an entire face and a neck. Okay, so it's repairing total entire skin, entire face it's going to repair. It is not even leaving in any place like eye area, neck area, so it's totally repairing entire face. So absolute kit is going to work for all concerns. So those people are affordable, definitely you can suggest the absolute kit. Okay, sir. Thank you. Chaitali ma'am, yes. Sir, I have a question. Sir, regarding Hydra brightening set. Sir, essence लगाने से स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है किसी क्लाइंट को, तो उनको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या उसको कंटिन्यू, अभी तो मैंने उनको रोकने के लिए बोला है, बट उनको क्या कंटिन्यू करने के लिए बोले, या ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं उसके? स्किन नॉर्मल है और एज 25 के आसपास। उनको ब्राइटनिंग एम्प्यूल एसेंस लगाए तो इचिंग आ रहा है, हाइड्रा ब्राइटनिंग एसेंस और क्रीम अप्लाई करने से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, पर यदि वो एसेंस अप्लाई करते हैं सिंगल तो उन्हें बर्निंग सेंसेशन होता है फेस पे 20 मिनट समथिंग। नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ भी सी अपना जो ब्राइटनिंग एसेंस है इट डजंट कंटेन एनी केमिकल इन इट। ओके, सो अपन अप्लाई कर रहे तो वो लोग को डेफिनेटली कुछ वो नहीं होगा। अगर वो लोगों का सेंसिटिव स्किन है, अब समझिए वो लोगों का सेंसिटिव स्किन है, मे बी सेंसिटिव स्किन के यूज करे तो ब्राइटनिंग सी अपने जनरल में ब्राइटनिंग किट में टोनर नहीं आएगा अपने, सो दिस एसेंस विल वर्क लाइक ए टोनर आल्सो। ओके, यहाँ अपना ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस जो है ये टोनर के प्लेस में ये अपन ये काम कर रहा है मैडम, ठीक है। तो इट्स लाइक वर्किंग लाइक ए टोनर। उनको बोलिए कि 2-3 दिन यूज करे, 2-3 दिन यूज करे, उसके बाद में वो लोगों का मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हाइड्रेटिंग ब्राइटनिंग क्रीम है वो यूज करे। स्टिल दे आर गेटिंग अ कंप्लेंट, देन टेल देम टू स्किप अ मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग एसेंस। क्यों बोलो तो जनरली उससे तो कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं आएगा। इफ दे हैव गॉट अ सेंसिटिव स्किन बोले तो उनको इससे पहले कुछ केमिकलाइज्ड क्रीम यूज करे, ठीक है। डॉक्टर कने गए, वो डॉक्टर कने गए तो दे विल गिव अ टोटली केमिकलाइज्ड क्रीम,
उनका स्किन रेड हो गया, रेड होके टोटली वो आउटर स्किन को खा लिया, अगर वो लोग पीलिंग का ट्रीटमेंट लिए तो कुछ तो भी होगा, बिफोर कुछ तो भी होगा, वो आप पूछना चाहिए मैम इससे पहले आप क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप स्क्रब भी यूज कर रहे हैं या सर वो बोले कि हम मतलब पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, फर्स्टली जो भी कॉस्मेटिक यूज किया है पहले ओले उन्होंने यूज किया है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं किया, और ओले का भी जो नॉर्मल क्रीम आता है ओले वाइटनिंग वाला, उनका और उसके अलावा या- बोले कि कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, सिंगल यही प्रोडक्ट यूज किया है, इससे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। See, अभी देखिए मैडम, ओले क्रीम इज मेनली टारगेटेड फॉर द एजिंग पीपल, जी ठीक है। जो ओले कंपनी है उसमें टोटल 7 आता है, ब्राइटनिंग रेंज आता है, वो पूरे भी मेनली टारगेटेड फॉर द एजिंग स्किन। एंड उनका आप बोले एज उनका 21 है, 25 ओके 25 है, बट स्टिल दे आर यूजिंग अ ओले क्रीम, बट ओके दैट इज वो लोगों का ऊपर डिपेंड है। टेल देम टू स्टॉप, अगर ओले यूज कर रहे तो दे आर नॉट गेट एनी साइड इफेक्ट, तो अपना एटोमी यूज कर रहे तो डेफिनेटली दे विल नॉट गेट एनी साइड इफेक्ट। ओले से 10 गुना बेटर ब्रांड है अपना, सो वो लोग तो मे भी कुछ फॉल्ट है, लेकिन इसके वजह से तो वो लोग को कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। डेफिनेटली आप उनको बोलिए 2-3 दिन यूज करो, बोलिए डेली नाइट टाइम उनको बोले क्लेंजिंग करने का बाद एम्प्यूल थोड़ा फिंगर में लेके रगड़ना नहीं, स्किन को रगड़ना नहीं, वो एम्प्यूल लगा के स्किन में मसाज नहीं करना, जस्ट वो लोग को लगाइए, नॉर्मली ब्लेंड करके छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद एक 5 मिनट रुकिए, 5-10 मिनट रुकने के बाद अपना हाइड्रेटिंग क्रीम जो है फोल्ड साइज लेके डॉट फॉर्म में फेस के ऊपर लगा के जस्ट अप्लाई करके छोड़ दीजिए, बोल मसाज नहीं करना, बिकॉज दीज आर नॉट फॉर द मेड फॉर द मसाज। ये क्रीम्स जो है मसाजिंग के लिए नहीं होता, इट इज नॉट मसाज क्रीम। ये क्रीम्स जो है जस्ट अप्लाई करके छोड़ दिए तो वो स्लोली पेनिट्रेट होते स्किन में, वो काम करते हैं, ठीक है मैडम। तो डेफिनेटली दे कैन यूज ब्राइटनिंग रेंज, तो आप भी यूज कर सकते हैं, उससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। थैंक यू सर। या अच्छा, अनिता मैम रोज हाय अनिता मैम, yes you can talk Anita ma'am. अनिता या मैम, अनिता मैम Hello. Yeah, Anita, she raised the hand. She raised the hand. అక్కడ अनम्यूट చేసుకోవాలి, अनम्यूट, मैं सबको अनम्यूट करने का कुछ देखता हूँ, सब अनम्यूटेड है शायद। जी अभी मैडम ने अनम्यूट हो गया है। या मल्ली अनम्यूट अయింది। अनिता मैडम अनम्यूट చేయండి, अनम्यूट करिए, आपका म्यूट में है माइक। చేశాను। వినబడుతుంది, చెప్పు। ఈ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ఉంది కదా సార్, అవును మేడం, అది లైక్ అందరికి ఇవ్వచ్చా మనం, లైక్ అంటే సన్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళకి, లేడీస్ ఉంటారు కదా కొంతమంది, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా యూస్ చేయొచ్చా? డెఫినెట్ గా యూస్ చేయాలి మేడం సన్ స్క్రీన్, వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నా యూస్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళినా యూస్ చేయాలి। సన్ స్క్రీన్ తోటి మీకు ఎటువంటి డ్యామేజెస్ జరగవు। సన్ స్క్రీన్ ఏంటంటే మీకు అదర్ కన్సర్న్స్, వేరే కన్సర్న్స్ రాకుండా కాపాడడానికే మనం సన్ స్క్రీన్ వాడతాము। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన అటోమీ సన్ స్క్రీన్ యూస్ చెయ్యమని చెప్పొచ్చు। ఆయిలీ స్కిన్ కానివ్వండి, డ్రై స్కిన్ కానివ్వండి, కాంబినేషన్ స్కిన్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ కూడా మన సన్ స్క్రీన్ లోషన్ సజెస్ట్ చేయొచ్చు। సన్ స్క్రీన్ లోషన్ అందరూ వాడాలి। అంటే మేము ఇంట్లోనే ఉంటాం కదా, మాకెందుకు, మేము సన్ లోకి వెళ్ళాం కదా। మీరు టీవీ చూస్తారా? మీ ఇంట్లోకి సన్ వస్తాడా? మీ ఇంట్లోకి డస్ట్ వస్తుందా? మీ ఇంట్లోకి గాలి వస్తుందా? మీ స్టవ్ ముంగట ఉంటారా? ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్। సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి కూడా దీంతో పాటు కూడా వీటి వల్ల కూడా మనకి కన్సర్న్స్ వస్తాయి। సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూజ్ సన్ స్క్రీన్। సన్ స్క్రీన్ లో కొంచెం మాయిశ్చరైజింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి, అది మన స్కిన్ ని యాంటీ ఏజింగ్ కన్సర్న్స్ రాకుండా కూడా కొద్దిగా కాపాడుతుంది। అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, వన్ మోర్ థింగ్, అది ఈవినింగ్ కేర్ సెట్ ఉందా? అవును మేడం। हिंदी हेलो, हिंदी में पूछो। हिंदी में, अच्छा ओके। वो इवनिंग केयर सेट है ना, वो हाइपर पिगमेंटेशन वालों को यूज कर सकते हैं हम लोग, कैन वी यूज फॉर पिगमेंटेशन? दैट इज मेड फॉर हाइपर पिगमेंटेशन मैडम।
అంటే we have to use this. Definitely you need to use because you should use because see hyperpigmentation వాళ్ళకి exfoliation మన దగ్గర లేదు अपने कने हाइपर पिगमेंटेशन के लिए स्क्रब नहीं है ठीक है we have a peel off mask we have a peeling gel we have a cleansing foam so these will work for the exfoliation those people are concerned with हाइपर पिगमेंटेशन वो लोगों के लिए अपने कने ये किट है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट किट इवनिंग केयर किट Okay. Fine. ओके Okay, thank you. बिनोय ओके बिनोय सर एक्चुअली अभी हमारे पास इंडिया में जो हम सनस्क्रीन पहले यूज करते थे वो 30 प्लस था सर लेकिन अभी हमारा एटोमी का जो है वो 50 प्लस है वी नो दैट 50 प्लस इज मच फार बेटर देन 30 बट customers have a different type of question that why we should use 50 plus and it is 30 plus available in the market so what to tell them sir सी एक्चुअली ये 30 और 50 जो है ये पॉइंट्स है लाइक अब देखिए अगर SPF 50 यूज करे सो दैट विल वर्क फॉर योर एंटायर डे ठीक है अब सुबह से लेके घर को आने जब तक वो काम करेगा अभी 2015 जो है दैट विल वर्क फॉर सी SPF 10 विल वर्क फॉर योर 1.5 आवर के लिए आप SPF 10 काम करेगा अगर SPF 50 है तो सो दैट विल आप कैलकुलेट कर सकते हैं सो दैट विल वर्क फॉर योर एंटायर डे ऐसा नहीं है कि SPF 30 है तो यूज करना SPF 50 है तो नहीं यूज करना SPF 50 है तो इट्स बेटर so that is going to protect your skin from the entire day so इस ऐसा रहता है so SPF 50 SPF 30 SPF 15 को ऐसा कुछ भी नहीं है see it depends on your quality texture also तो SPF 50 है तो क्या होगा बोलो अपना सनस्क्रीन लोशन थोड़ा ऑयली हो जाता लेकिन अपने कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है इस कंटेनर कंप्लीटली लोशन बेस्ड सो उसमें कम ऑयल बेस्ड कुछ भी नहीं है तो SPF 50 वो लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं सर यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट देम बोलना कि मैम देखिए SPF 50 रहने से बहुत अच्छा है टोटल आपका एंटायर डे आपको ये काम करेगा बाहर घूमे तो SPF सन प्रोडक्ट यूज करना बोल के कुछ भी नहीं है आप घर में रह रहे या ऑफिस में रह रहे या सिस्टम के सामने रह रहे तो भी ये प्रोटेक्शन क्रीम आपको काम करेगा सो दैट सनस्क्रीन वर्क फॉर योर एंटायर डे दैट्स व्हाई वी मेड SPF 50 okay thank you sir another one question sir if the skin is dry अगर स्किन ड्राई है ओके एंड उस पे अगर पिंपल्स है तो सर इवनिंग केयर तो हमको सजेस्ट करना ही है सी सर पहले बात देन विथ इवनिंग केयर हाँ सर या सर बोलिए आप बोलिए फर्स्ट यू कंप्लीट देन आई हाँ कंटिन्यू तो अगर मतलब ओके स्किन ड्राई है और उस पे Okay. पिंपल्स है तो हम इवनिंग केयर तो उनको देंगे लेकिन इवनिंग केयर के साथ सर Evening- एडिशन में अगर हम हाँ. उनको बोलते हैं कि आप फेम ले लो तो इट सम आई मीन वेरी कस्टमर्स वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कैन वी गो फॉर ओनली द न्यूट्रिशन क्रीम सी सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ड्राई स्किन मिल रहा है ड्राई स्किन मिलने को आपको पिंपल नहीं मिलेंगे इन द सेंस 100 जने में एक जने को आपको ड्राई स्किन में पिंपल्स आएगा इट्स कॉल्ड एजिंग पिंपल्स वो लोगों को बहुत कम आएंगे ऑयली स्किन लोगों को आपको पिंपल्स मिलेंगे ड्राई स्किन लोगों को पिंपल्स नहीं मिलेंगे और वन मोर थिंग अगर आपका स्किन ड्राई है वो लोगों को कुछ भी लाइक पिगमेंटेशन नहीं है डलनेस नहीं है तो कुछ भी कंसर्न्स नहीं लाइक ब्राइटनिंग कंसर्न्स कुछ भी नहीं है तो आप इवनिंग केयर किट सजेस्ट करने का जरूरत नहीं है सर directly you can suggest a nutrition kit because nutrition kit has got brightening properties that will maintain for your brightening as well as your dryness as well as for your anti-aging के लिए काम करेगा ठीक है हर एक जना को एटोमिक का इवनिंग केयर किट सजेस्ट करने का जरूरत नहीं है सर दोस्त पीपल आर कंसर्न वो लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं अगर देखिए वो लोगों को कंसर्न नहीं है तो व्हाई शुड यू सी आई एग्री वो एक्सफोलिएशन के काम करेंगे लेकिन ड्राई स्किन के लिए दैट इज नॉट सूटेबल ओके
ठीक है सर, क्यों बोले तो इसमें पूरे जो पीलिंग है ये ड्राई करेगा स्किन को, क्लेंजिंग फोम से वो भी ड्राई करेंगे। सो जो भी है वो ड्राई करने का प्रॉपर्टी इसमें है। तो ड्राई स्किन अच्छा वाले अच्छा को अगर कंसर्न है, ड्राई स्किन वाले को पिगमेंटेशन है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट इसके साथ ओके आप डेफिनेटली न्यूट्रिशन, कम से कम न्यूट्रिशन क्रीम और टोनर, ये दोनों भी सजेस्ट करना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। नवनीत सर, नवनीत सर। नवनीत सर आपका डाउट पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज किया है। अच्छा, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। या सो कोई अनम्यूट कर पाएंगे उनको, नवनीत सर को कुछ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है, होस्ट या को होस्ट। हेलो। हाँ, हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं पूछना ये चाहता हूँ सर कि जो बीबी क्रीम आता है हमारे यहाँ पर, या सर, और एक वो है नेचुरल ग्लो करके मेकअप का एक आइटम आता है, तो इस दोनों में भी वो SPF दिया हुआ है, तो ये हम लोग क्या सनस्क्रीन यूज नहीं करें और यदि ये यूज करते हैं तो चलेगा क्या? सी सर, बीबी क्रीम इन द सेंस ब्यूटी बैलेंस क्रीम बोलते हैं सर, उसमें ब्यूटी बैलेंस क्रीम बोलते हैं बीबी क्रीम को। बीबी क्रीम में डेफिनेटली उसमें सनस्क्रीन रहेगा, लेकिन उसमें SPF फैक्टर देख लेना चाहिए। अगर आपको सुबह से रात तक आप स्किन में सन में एक्सपोज कर रहे, सिस्टम के सामने बैठ रहे, तो देन यू रिक्वायर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अलग से यूज करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हैं। बट बीबी क्रीम कंटेन लिटिल कलर इन इट। बीबी क्रीम में आपको थोड़ा कलर मिलेगा। वो क्या काम करता है बोले तो, जनरली जो कोई भी मेकअप लाइक नहीं करता है, लेडीज में जनरली मेकअप थोड़े दिन लाइक नहीं करते हैं, तो बीबी क्रीम में थोड़ा फाउंडेशन तो कलर कंटेंट रहता है। तो वो क्रीम लगाने से वो लोगों को लाइट ग्लो भी आएगा, स्किन का मॉइस्चराइजर भी रहेगा और सन प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो बीबी क्रीम का काम क्या है बोले तो, स्किन को कलर देना, मॉइस्चराइजिंग मेंटेन करना और सन प्रोटेक्शन देना। तो बीबी क्रीम में आप मे बी SPF फैक्टर है वो थोड़ा कम रहेगा, क्यों बोले तो 30 अपने यहाँ पे शायद 30 है, सन प्रोटेक्शन 30 the SPF 30 है, तो that is very good. So the SPF 30 is going to protect your skin for the 5 hours. 5 hours के लिए अपना SPF 30 काम करेगा। So okay, you can use. वो लोगों को स्टिल रिक्वायर है, स्टिल ज्यादा देर हम बाहर रह रहे तो हमको चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड सनस्क्रीन लोशन। और हेल्दी ग्लो बेस में भी ऐसे ही सेम है ना सर? वो उसमें भी मतलब हमको ज्यादा देर बाहर रहना है तो पहले ये लगाएं और बाद में सनस्क्रीन लगाएं, मतलब क्या करेंगे? ये दोनों हमको लगा सकते सर, नहीं पहले ये लगा के, ज्यादा देर बाहर रह रहे तो ये लगा के उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सकते। ओके सर, थैंक यू सर। Any more questions? Any more questions? ధనలక్ష్మి గారు ఉన్నారా సార్? అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు, బట్ తెలీదు. ధనలక్ష్మి గారికి చెప్పాను. ధనలక్ష్మి మేడం, ఎనీ డౌట్? Probably she has some problem with muting on meeting. Sir, like అందరూ సోనీ సింగ్ మేడం, Archana Soni madam. Singh ma'am, Sumana ma'am, Sarita Boyne garu. Any doubts? MT Soini garu, Soini ma'am, Arif sir, Navneet sir, almost पूछ लिया. Ranjit sir, Archana ma'am. Any more doubt? If you have doubt, we may take session later. But we are holding. Hello. Hello. Yeah sir.
सर मेरा एक सवाल ये है सर, किसी की अगर सेंसिटिव स्किन होती है तो अभी जैसे मैंने जो इवनिंग केयर का किट है वो इस्तेमाल कराया था, तो उनको स्किन पर रेडनेस आ गई थी सर, जैसे ही उसको अप्लाई किया। डेफिनेटली सर आएंगे। ओके, तो नहीं सेंसिटिव स्किन लोगों को आप जी नहीं, सेंसिटिव स्किन लोगों को ये इवनिंग केयर किट करेक्ट नहीं है सर। कि बोलो दैट इज कि एक्चुअली सेंसिटिव स्किन लोगों को क्या होता है बोले तो उनका इंटरनल सेल्स जो है बहुत फास्ट काम करते हैं, एक्सफोलिएशन उनको फास्ट होता, उनका स्किन एक्सफोलिएशन बहुत फास्ट होता है। अभी अपन स्टिल ऑलरेडी वो लोगों को फास्ट ही रहता, तो अपन ये यूज करें तो और फास्ट हो जाता। तो डेफिनेटली वो लोग का फीलिंग स्किन फील होके दे विल गेट अ रेडनेस एंड दे विल गेट इचीनेस। तो इवनिंग केयर की तो वो लोगों को सजेस्टेड नहीं है सेंसिटिव स्किन के लिए इवनिंग केयर सजेस्ट। अगर इवनिंग केयर किट में सब सजेस्ट करना चाह रहे तो यू कैन सजेस्ट अ क्लेंजिंग फोम। आप क्लेंजिंग फोम सजेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में यू कैन सजेस्ट अ न्यूट्रिशन क्रीम। वो लोगों को न्यूट्रिशन क्रीम बहुत अच्छा काम करेगा सर, क्यों बोले तो वो स्किन को हाइड्रेट करेगा और रेडनेस को कम करेगा, उनका स्किन का इरिटेशन को कम करेगा। तो न्यूट्रिशन क्रीम एंड एसेंस इज वेरी गुड फॉर द सेंसिटिव स्किन एंड अ peeling mask and a peeling gel is not suggested for the sensitive skin sir। जो लोगों को रेडनेस का कंसर्न रहता है वो लोगों को ये सजेस्ट नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि बिकॉज ये पूरे जो है ना स्किन का लेयर को एक्सफोलिएट करता है, तो डेफिनेटली दे विल गेट रेडनेस। तो वो लोगों को ये सजेस्ट नहीं है सर। ओके थैंक यू सर। ओके Okay, so it is 8:25. I think nobody is raising hands now. 30 seconds more if anybody has doubt. We are closing the session. Thank you very much for all attendees. Thank you, Harry sir, for providing the platform for speaking to Srikanth sir. Thank you, Srikanth sir. He is well experienced since 20 years in the field. He is one of the eminents in the Hyderabad, and it is our luckiness that he gave his busy time for us. Thank you personally. Everybody is thankful to you, and Team Warrior is thankful to you for taking this session, sir. Thank you for all attendees, and thank you for all the hosts. And Ramani ma'am said sorry. She's having some sickness. That's why she left early. She regretted her early exit. Thank you, and we are closing the session. We'll inform you next time. Have a blessed and wonderful. Yes, anything? देखते नहीं क्या ये मैसेज में प्रूफ नहीं करते रहते हैं मैसेज उधर। नहीं समझा नहीं हरी सर। हेलो हाँ सर, बहुत अच्छा रहा आज का। हरी सर का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। Let us wait for 10-15 seconds. Yeah. Yes, ma'am. Suman, ma'am, do you have anything else to say? Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening. बेटी लगा रही थी और हाइड्रा इवनिंग केयर सेट से जैसे पूरा उसने फेस वॉश करा, फिर हाइड्रा लगाती है और उसके पिंपल्स नहीं जाते और रेडनेस, मतलब कि मास्क भी उसके मतलब निशान है पिंपल्स के वो नहीं जा रहे। बोले तो इवनिंग केयर की पिंपल्स नहीं जा रहे। हेलो, हाँ, आपका क्वेश्चन रिपीट करिए सुमना मैम। सुमना मैडम अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन क्या है? इवनिंग केयर किट यूज करे तो आपका जो पिंपल्स नहीं जा रहे। हाँ जी सर वो मेरी बेटी लगा रही है, हाइड्रा लगा रही है और उससे पहले हाइड्रा लगाने से पहले वो अपना फेस वॉश कर लेती है इवनिंग केयर सेट से, और उसके ना पिंपल्स बार आ जाते हैं, मतलब हटते हैं फिर आ जाते हैं, और फिर उसके जो निशान है निशान नहीं वो भी नहीं जा रहे। ओके, सो पहले
पहले ये बोलिए आपका बेटी क्या करते हैं? सर मेरी बेटी जॉब करती है। क्या जॉब करती है? सर ये कंप्यूटर पे करती है ये काम। ओके, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे काम करते हैं। हाँ ओके, जी। उनका स्किन ऑयली है? एज क्या है उनका? इसकी ना ये 24 प्लस है ये तो Okay, अभी। हाँ जी, तो इसकी स्किन ड्राई है। उनका स्किन ड्राई है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, देखिए मैम, तो आप क्या करना चाहिए उनको? हाँ जी। इवनिंग के किट आपका है ना? यस सर। इवनिंग मतलब में जैसे ही इसमें वो अपनी ऑफिस से आती है ना, ऑफिस से आते ही वो पहले तो वो बाथिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपना फेस वगैरह वो वॉश करते हैं, बाद में वो कुछ और लेती है। बाद में कुछ और खाने पीने का लेगी सामान, पर पहले वो आते ही अपना फेस वगैरह वो वॉश करेगी इवनिंग केयर सेट से। तो फिर सुबह फिर वो हाइड्रा लगाती है। जब सुबह जाएगी, सुबह भी उसने फेस वॉश करके हाइड्रा ये लगाना ही लगाना है। हाइड्रा एम्प्यूल लगाती है फिर क्रीम लगाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही लगाते हैं जी। या ओके मैडम, तो आप पहला क्या करना बोले तो आपका इंटरनल का जो है लाइक आप ऑयल प्रोड्यूस करने का जो फूड रहता है लाइक चिकन रहने दीजिए। ओके, जो ऑयल प्रोड्यूस करने का थोड़ा फूड है वो थोड़ा कम करना चाहिए थोड़े दिन के लिए, ठीक है? ऑयल थोड़ा कम कम खाओ बोल के बोलिए उनको। और फेस वॉश उनको क्लेंजिंग फोम जो है 3 टाइम यूज करो बोल के बोलिए। क्लेंजिंग फोम बोल रहा हूँ मैं आपको, वो भी डायरेक्ट फेस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, पाम के ऊपर लेके पानी ऐड करके लैदर करके फिर फेस के ऊपर लगा के मसाज करो बोल के बोलिए थोड़े दिन के लिए। ब्राइटनिंग क्रीम, ठीक है? ब्राइटनिंग क्रीम थोड़े दिन के लिए स्किप करिए, स्किप करके देखिए। ब्राइटनिंग एम्प्यूल आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्राइटनिंग एम्प्यूल लगाइए। अगर आपका सनस्क्रीन है तो सुबह बाहर जा रहे जब ब्राइटनिंग एम्प्यूल के ऊपर सनस्क्रीन लगाइए, ठीक है? थोड़े दिन के लिए आप ब्राइटनिंग क्रीम स्किप करिए। ओके, तो ठीक सर है, आप और ये जैसे आप बता रहे हो ना कि आप हाथ पे लेके उस पे में पानी लगा के तो हम उसकी फोम बनाते हैं, तो जब वो ऐसे ही करती है सर, क्योंकि ना अच्छा 3 टाइम तो नहीं कर सकती, पर ये सुबह और शाम को ये करती है। ओके ओके, वही मैडम सी अब देखिए आप जो है एक्सटर्नल से आपके यूज कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल से अपन का बॉडी सपोर्ट नहीं करे तो एक्सटर्नल से अपना क्रीम्स काम नहीं करेंगे, ठीक है? आप हम क्यों अभी आपको मैं क्यों पूछ रहा बोले तो उनको क्या काम क्या करते हैं अभी सिस्टम के सामने है रहने से भी एक्चुअली उनका एज 25 में स्किन ड्राई होना नहीं चाहिए। उनका स्किन ड्राई हुआ क्यों बोले तो बिकॉज ऑफ द यूवीआर दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेस के वजह से उनका स्किन ड्राई अप हुए से है। लेकिन इंटरनल जो है ना उनका स्किन ऑयली है, वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा, इसलिए आपको उनको पिंपल्स आ रहे हैं। वो पिंपल मार्क्स है, उनको पिंपल स्कार है? यस यस सर, स्कार्स भी है? हाँ जी, हाँ जी, यस। ठीक है, तो पिंपल स्कार के लिए अपना एम्प्यूल काम करेगा, तो एम्प्यूल लगाओ बोलिए थोड़े दिन के लिए। ये ब्राइटनिंग क्रीम स्किप करिए। अगर आपको ब्राइटनिंग क्रीम यूज करना तो थोड़ा पर्ल साइज लेके ओनली नाइट टाइम, जब नाइट टाइम आप सोए जब यूज करना चाहिए। क्यों बोलते हो अभी उन बाहर जाएंगे तो वो थोड़ा डैमेज होएगा, तो बाहर रात में सोने का टाइम में थोड़ा पर्ल साइज लेके यूज करो बोल के बोलिए। लेकिन मेन थिंग जो है थोड़ा ये चिकन खाने का, ऑयल फूड खाने का, बाहर का फूड खाने का थोड़े दिन कम करो बोलिए, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप उनके लिए काम देखिए, उनका स्किन अभी डिफिकल्ट है उनका स्किन। देखिए क्यों बोलते तो बाहर से ड्राई है अंदर से ऑयली है, क्यों बोले तो हाँ जी, थोड़ी ये सर, ये मैं आपकी बात बीच में थोड़ा काट रही हूँ। इसके ना जब ये छोटी थी ना तो तभी से सर इसकी स्किन ड्राई ही रहती थी। छोटे जब से ड्राई है? यस। ओके, तो बहुत
तो कम जने रहते हैं ड्राई स्किन वाले, बहुत कम मिलते हैं अपने को। बट वो लोग अभी देखिए उनको टोटल ड्राई है तो अपन कुछ तो भी रेंज सजेस्ट कर सकते हैं वो लोग, क्यों बोलते, लेकिन उनको एक्ने आ रहा ना, तो उनका अकॉर्डिंग टू एज के वजह से वो लोग को एक्ने आ रहा है। तो पहले अपन वी शुड कंट्रोल एक्ने, सो दैट इफ वी आर नॉट कंट्रोलिंग एक्ने, वो क्या होगा, फिर स्कार आ जाता, फिर मार्क आ जाता। वो मार्क क्या है, एक्ने से आए सो मार्क आपको 21 डेज में चले जाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्ने मार्क से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट ए परमानेंट मार्क, वो चले जाता। अगर आपका एक्ने कम हो गया तो डेफिनेटली वो मार्क्स भी चले जाएंगे अपना एम्प्यूल से, बहुत क्रीम से उसके ऊपर। सो लेकिन उनको बाहर जा, लाइक उनको थोड़े दिन बाहर का फूड कंट्रोल करना मैडम, थोड़ा ऑयल कंट्रोल करिए उनको। ऑयल का हम सर या घर का ही फूड हम 100% घर का ही खाते हैं। ओके ओके, हाँ जी। थोड़ा चिकन तो चिकन एम्प्यूल विकन। सर जो एम्प्यूल है ये सुबह लगाए या शाम को लगाए? एम्प्यूल सुबह लगा सकते, शाम को भी लगा सकते हैं मैडम। एम्प्यूल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट्स इन ए जेल फॉर्म। उससे कुछ आपको वो सेंसिटिव स्किन के लिए भी काम करेगा, ड्राई के लिए भी काम करेगा, ऑयली के लिए काम करेगा, कॉम्बिनेशन के लिए भी काम करेगा, उससे कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। जे ब्राइटनिंग क्रीम जो है थोड़ा लिटिल बिट रिच टेक्सचर में रहेगा। मे बी वो क्यों सिप करो बोले तो उसके वजह से भी एक्रिस आने का चांसेस रहता। क्यों बोले तो उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा रहता ना, उसके लिए भी उनको थोड़ा एक्निस आने का चांसेस रहता। इसलिए वो थोड़े दिन, एक 5 से 1 वीक स्किप करिए। अगर आपको मालूम पड़ रहा कि उससे आ रहा बोले तो स्किप करके एम्पूल यूज करने के बाद आप नॉर्मली अदर क्रीम्स, नॉर्मली जेल बेस्ड क्रीम्स आप यूज कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड कम करके जेल बेस्ड आप यूज। ओके सर। सर जैसे मतलब कि ये बोला हुआ था एम्प्यूल लगाने से हमारी एज कम नजर आती है, तो इसको ये जैसे 25 ईयर की ये हो जाएगी अब 1 मंथ के बाद, तो क्या ये इसके लिए ठीक रहेगा? क्या बोल रहे हैं आप, कौन सा ठीक, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? सर मैं अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला ना ये एम्प्यूल लगाए, एम्प्यूल लगाने से क्या, जैसे हाँ मैं लगाती हूँ एम्प्यूल लगाती हूँ तो मेरा फेस काफी ठीक हो गया। जैसे मेरे रिंकल्स थे, लाइनें पड़ी थी, तो डल स्किन हो गई थी, तो इससे मेरा काफी बहुत ज्यादा ठीक हो गया। तो अब जैसे मेरी बेटी एम्प्यूल लगाएगी, आपने बोला ना जैसे उसके डार्क सर्कल बन गए, उसके निशान छोड़ देते हैं जो पिंपल्स हैं, तो क्या उसकी एज के ऊपर भी उसके फर्क पड़ेगा या ठीक रहेगा इसका एम्प्यूल इसके लगाना? अच्छा एक मिनट, एम्पूल हाइड्रा ब्राइटनिंग में 2 है सर श्रीकांत सर, एक एसेंस है, एक क्रीम है। आप एसेंस का जगह एम्पूल बोल रहे हैं या एब्सोल्यूट एम्पूल बोल रहे हैं? हाँ जी मैं एम्प्यूल बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना ये जो जिनकी एज ज्यादा है वही लगा सकते हैं। अच्छा वीरेश सर एम्प्यूल एब्सोल्यूट वाला है मैडम के पास में। अच्छा एब्सोल्यूट एम्पूल है। हाँ जी एब्सोल्यूट वाला। हाँ यस ओके ओके, एब्सोल्यूट का एम्पूल है आपका। ने मैडम आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट का एम्पूल का टेक्सचर क्या है, ऑयली है या जेल टाइप में है, कैसा है वो? सिरम है, सिरम टाइप है, ब्लू कलर की बोतल है। या वो ठीक है मैडम। अगर आप हाथ पे लेंगे उसका आप ऑयल जैसा फील करेंगे या जेल जैसा फील करेंगे, कैसा फील करेंगे, वाटर जैसा फील करेंगे? सर वो ना जेल जैसा है। हाँ जेल जैसा है। सो जेल जैसा है तो आप यूज कर सकते हैं मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, अगर उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है तो आप वो स्टॉप करना चाहिए। क्यों बोलते हो, और अब उनका स्किन एक्ने सारे तो उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम रहेगा, ऑयल से प्रॉब्लम रहेगा। तो उसमें ऑयल कंटेंट कुछ भी नहीं है तो आप डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं मैडम एम्प्योर, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना मैडम। कौन सा भी क्रीम आपको कितना सूट हो रहा है उतना ही क्वांटिटी लेना। तो आप करें ये इवनिंग केयर किट भी है? यस सर। ठीक है, तो आप इवनिंग केयर किट क्या करिए, ये जो पील ऑफ मास्क है ना मैडम, हाँ जी पील ऑफ मास्क, आपका बेटी को जिधर पिंपल आ रहा हाँ जी उधर ही एक स्पॉट जैसा लगाइए। ओके ठीक है, उधर ही स्पॉट जैसा लगा के वही एरिया में पील करके छोड़ दीजिए।
ठीक है, पूरा एंटायर फेस नको लगाइए, जिधर भी वो लोगों का पिंपल्स है, बिकॉज ये पीलिंग मास्क किसके लिए काम करता बोले तो टाइटनिंग के लिए काम करता, फेस टाइटनिंग के लिए काम करता। सो जो ये पिंपल रहता है ना, उसको ड्राई अप करने के लिए आप ये पील ऑफ मास्क आप जिधर भी पिंपल है उधर लगाइए, नॉर्मली पील करके छोड़ दीजिए। तो ऐसा थोड़े दिन करिए, डेफिनेटली उनको रिजल्ट आएगा मैडम। ठीक है सर। आप कोई स्क्रब यूज कर रहे हैं? नहीं, स्क्रब नहीं नहीं। यूज कर, क्योंकि हम एटॉमी का ही जब से मैंने ज्वाइनिंग मैंने की है तब से मैं यही कर रही हूँ, और कोई किसी कंपनी का नहीं, कोई क्यों बोले तो उस स्क्रब से भी आपको इन्फेक्शन स्प्रेड होके और पिंपल्स आएंगे, तो स्क्रब यूज नको करिए। आप डायरेक्ट ये पील ऑफ मास्क आप यूज कर सकते हैं, इसमें डीप क्लेंजिंग फोम यूज कर सकते हैं, क्लेंजिंग फोम भी यूज कर सकते हैं। पीलिंग जेल एक थोड़ा कम करिए, पीलिंग जेल थोड़ा दिन स्किप करिए, ये पील ऑफ मास्क जिधर भी कंसर्न है उधर लगाइए, पील करिए। दैट्स इट। ओके, ठीक है ओके ओके, थैंक यू। हरी सर जरा क्लोज करेंगे। जी बिल्कुल, आज का सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। और आज इस मीटिंग के अंदर जितने भी डायनेमिक लीडर प्रेजेंट टाइम में भी अवेलेबल हैं, तो सभी जानना चाहते हैं। और आज हमारे जो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपर्ट होता है, और ये आज बिल्कुल आज हमें आज ऐसा फील हो रहा है खुद से कि हमें श्रीकांत सर को बार बार सुनना चाहिए, जिससे हमें एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हम लोग आज तक काम कर रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलतियां भी कर रहे थे, तो जिससे एक्सपर्ट जो होता है, जिनका जिस सेक्टर में वो हों और उनकी नॉलेज अगर 10 साल 15 साल से 20 साल से अगर वो इस फील्ड में है, तो वास्तव में उसका हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो आज का मीटिंग बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खास, और हम लोग नेक्स्ट जो है बहुत जल्दी प्लान करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को इनवाइट करेंगे, जितने भी कंज्यूमर हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, प्लस जितने लीडर हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो लोगों को सजेशन देते हैं प्रोडक्ट यूज करने का, तो मैं आशा करता हूं कि वो सभी लोग जो हैं अपने लीडर्स को सभी को बुलाएं। और उससे क्या होगा कि आप फील्ड पर जाते हो और लोग आपसे पूछते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा नहीं, तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज हमारे पास जो एक्सपर्ट थे जो कि श्रीकांत सर, और जो हैदराबाद टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आज का अमेजिंग मीटिंग किया। और साथ में हमारे डायनेमिक लीडर वीरेश सर उनका साथ दे रहे थे, और इसका सेशन बहुत ही खास, बहुत ही अमेजिंग। और साथ में जो है रमनी मैम ने मीटिंग को होस्ट किया, उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा। और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग, और हम लोग बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट सेशन भी बहुत जल्दी प्लान करेंगे। और आज हमने फर्स्ट टाइम अपना यहाँ पर श्रीकांत सर को सुना है हिंदी के अंदर, क्योंकि मैं सर के तेलुगु सेशन में मैं रहता हूँ हमेशा, मगर उसमें मुझे कई चीजें होती कि क्लियर नहीं हो पाती थी। तो आज जो हिंदी का पूरा A to Z हिंदी और इंग्लिश का मिक्स जो आज का कॉम्बिनेशन पैक था, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खास। और आज के सभी लीडर को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं। और नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं, नेक्स्ट 4 से 5 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोग रेडी रहिएगा, और अपने टीम को भी आप लोग सजेशन बता के रखिएगा कि हम लोग बहुत जल्दी एक स्किन केयर एक्सपर्ट लीडर के साथ में हम लोग एक सेशन करने वाले हैं। तो उस दिन आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपनी टीम को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि आज हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम सर को सुन रहे थे, श्रीकांत सर को, तो आपको भी नहीं होगा कि सर कितना अच्छा मीटिंग आज का लेने वाले हैं। तो वास्तव में आज का मीटिंग बहुत ही खास था, और आज जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर लास्ट तक रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से नॉलेज लिया होगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशन हुआ। थैंक यू श्रीकांत सर, थैंक यू वीरेश सर, आपका आज का सेशन करने के लिए आपने जो टाइम निकाला, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा आपको पूरी टीम वॉरियर की तरफ से। तो आज का सेशन बहुत ही खास था। अब मैं इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करूंगा, और अगर किसी का कोई मैसेज हो तो प्लीज बता सकते हैं। श्रीकांत सर, लास्ट कोई मैसेज है, उसके बाद हम लोग क्लोज करें इस मीटिंग को। मैसेज कुछ भी नहीं है सर। सो एक्चुअली मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ सबके लिए। क्यों बोलो तो सी नॉलेज इज डिवाइन, जितना भी नॉलेज हम देंगे तो अपना बढ़ेगा।
ठीक है। तो लाइक दैट उसके वही कॉन्सेप्ट से मैं चल रहा हूँ। एक्चुअली मैं वीएस सर से भी प्लान कर रहा था कि सेमिनार के बारे में भी प्लान कर रहे थे, लाइक सब जने को बुला के ऐसा बड़ा कंडक्ट करके बोल के सोच रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑनलाइन हो गया। सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। सो थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन सर। बिल्कुल सर, हम लोग जो है बहुत जल्दी हम लोग ग्राउंड पे भी ऑफलाइन मीटिंग भी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोगों का प्लान चल रहा है हैदराबाद के अंदर, जिसमें हमारे डायनेमिक लीडर अपना वीरेश सर, भीम सर बहुत ही अच्छे से जो है पूरा कवर कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी एजुकेशन सेंटर का हम लोग प्लान करेंगे बहुत जल्दी वहाँ पर, और जिससे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो सीख पाएंगे। और अभी इसी के साथ मैं इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट।